next unit is 14 unit. Okay, unit number 14. This is biomolecules. Biomolecules. What they are? The biomolecules are the molecules which are present in living cell, either in human or animals or even plant also. Okay, so biomolecules is the molecules which synthesize in our body or by which our bodies consist. Okay, so कोई भी एक लिविंग क्रिएचर का कि बॉडी में या तो ये सिंथेसाइज होते हैं या फिर उनकी बॉडी इन्हीं से बनी होती है. ठीक है, सो ये एक बॉडी के पार्ट हैं. सिर्फ लिविंग क्रिएचर की बात अभी अपन कर रहे हैं. ठीक है, सो उसमें एनिमल भी, ह्यूमंस भी और प्लांट्स भी आते हैं. ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर इन योर सिलेबस? कार्बोहाइड्रेट्स, after the reduction of syllabus you will study only first carbohydrates, second protein, and third is nucleic acids. Okay, in lower classes or in I think 9th and 10th, 9th or 10th in bio subject you study about the DNA, RNA. Okay, these are the nucleic acids. Okay, and vitamins are omitted from your syllabus. So first we will discuss carbohydrates. Okay, so carbohydrates, these are the optically active polyhydroxy aldehydes or ketones. Okay, carbohydrates are optically active. They are optically active and having more than 3 hydroxyl group. So that's why we call them polyhydroxy. And functional group present in carbohydrate is aldehyde or ketone. Okay, next is classification. Okay, classification of carbohydrates. First, on the basis of taste. Okay, on the basis of taste, some carbohydrates are sweet in taste, so they are sugar. They are called sugars. First sugar and second one is non-sugars. Non-sugars. Okay, तो sugars में क्या आएगा आपका? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज. सुक्रोज क्या है? केन शुगर. ओके, एंड नॉन शुगर्स में स्टार्च. और हम ये कह सकते हैं जो polysaccharide. This term we will discuss later. Polysaccharides. Okay, means polymers. एक तरह से जो वैसे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीमर ही. जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं. So they are non-sugars. So on the basis of taste we can classify carbohydrates in two classes, that is sugar and non-sugars. Second base for the classification is presence of functional group, type of functional group. Okay, B, on the basis of type of functional group present. Okay, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर
polyhydroxyaldehydes or ketone. If they have aldehyde, so they called as aldose. And if ketone is present, so ketose. Remember one thing, carbohydrates name ends with O's. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके नाम के लास्ट में मैक्सिमम में, स्टार्च में नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें क्या होता है, ये ओज लगाते हैं जनरली, ठीक है। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स के नेम जनरली ओज से एंड होते हैं। और सेकेंड ग्राउंड हमने जो लिया है उसकी क्लासिफिकेशन का वो ये था कि उसमें यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम ओज एल्डोज कहेंगे, अदरवाइज कीटोन है तो कीटोस कहेंगे। थर्ड एंड मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है थर्ड क्लासिफिकेशन, ओके। ऑन द basis of number of simple or simpler molecules produced on hydrolysis, ओके। सबसे सिंपल बात ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसमें हम उस बेस पर क्लासिफाई करेंगे कि जब हम इन मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, सिंपलेस्ट पार्टिकल में डिसोशिएट होते हैं, ओके। इनकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ओके। On the basis of number of simpler molecules produced on hydrolysis, okay. If first monosaccharide एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड मींस दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। जब ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे मतलब ये फर्दर सिंपलर मॉलिक्यूल में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, इट मींस दे आर इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये खुद में ही सिंपल मॉलिक्यूल है, तब तो ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओके। सेकेंड, oligosaccharides, okay. Oligosaccharides, they are produces 2 to 10. They are produces 2 to 10 number of monosaccharides on hydrolysis, okay. हम जब भी कभी ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो 2 to 10 मतलब 2, 3, 4, 5 इस तरह से 10 तक यदि उन्होंने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इतना जरूर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जो 2 यूनिट या 3 यूनिट या 5 यूनिट्स जो बन रही हैं वो सब सिमिलर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज इज डाइसैकेराइड बिकॉज इट डिसोशिएटेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो डिफरेंट यूनिट में टूट रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, इन दोनों से हुआ था, ठीक है। माल्टोज when we hydrolyze the maltose molecule, so it will produces only and only 2 unit of glucose. It means it consists by a single type of molecule or
monosaccharides. Clear है? तो oligosaccharides. And third category is polysaccharides. Third is polysaccharides. Definitely ये more than 10. जब भी इनको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सो दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स. ओके, फॉर एग्जांपल स्टार्च. स्टार्च और बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं. क्यों? डेफिनेटली वो बहुत सारे यूनिट से जुड़ के बने हुए हैं, तो पॉली तो होना ही है उनको. क्लियर है? तो वो पॉलीसेकेराइड्स. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, nomenclature of carbohydrates. On the basis of number of carbon atoms, presence of functional group, we can classify that as this is number of carbon atom from aldehyde. Suppose aldehyde group present, so and here ketone group, so we can name them as, if basically number of 3 carbon atoms is the simplest molecule, so if 3 carbon atom present, so it called as aldo triose. Ose for saccharide or carbohydrate, tri means 3 carbons, or aldehydic group if present, so we use aldo as a prefix. Here keto triose, if 4 carbons, so aldo tetrose. Here keto tetrose. If 5 carbon atoms are present, so aldo pentose. Here keto pentose. Like this way we can name the carbohydrates. Okay, next, so in your syllabus glucose, only glucose is in your syllabus, so we will study about the glucose, how glucose molecules are prepared. Okay, monosaccharide. Okay, monosaccharide. In monosaccharide, first is glucose. Glucose is the simplest monosaccharide. Glucose. Okay, so in nature glucose is present in free state as well as in combined state both. Okay, it present in sweet fruits, honey, इन सब में क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. मतलब इसका मेन सोर्स अपन ये मान सकते हैं कि जो राइप्ड ग्रेप होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ग्लूकोज का. ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, हाउ विल वी प्रिपेयर? Preparation method. First, from sucrose. सुक्रोज क्या है? सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? केन शुगर. ओके, सो केन शुगर से हम इससे बना सकते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वी कैन हाइड्रोलाइज द सुक्रोज. ओके, C12H22O11. This is sucrose. On hydrolysis, acidic hydrolysis, it will produce C6H12O6 plus C6H12O6. Okay, we can't write 2C6H12O6. यहाँ पर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है, बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है इनका. ये क्या है? ग्लूकोज. एंड दिस इज फ्रक्टोज. Both having
molecular formula C6H12O6, but in glucose aldehydic group is present and in fructose ketonic group is present. So this is hexoketose, keto हेक्सोस और ये क्या है एल्डो हेक्सोस है. ठीक है. सेकेंड मेथड फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च क्या है? स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है. अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन में C6H10O5 whole N. This is the formula of starch plus N molecule of water. It will produce C6H12O6. ये सिर्फ ग्लूकोज, इससे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा. ओके. C6H12O6 विथ स्टार्च और ये सुक्रोज से बना हुआ था. तो ये दो मेथड्स हैं इनके प्रिपरेशन के. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. स्ट्रक्चर ऑफ glucose. Okay, so in structure of in this concern, with the help of many techniques, it is found that the molecular formula of glucose is molecular formula of glucose is C6H12O6. Okay, so after getting this formula, because it has 6 carbon, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का यदि हम फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कनेक्ट कर दिए मॉली एटम्स और वो दिए ही फॉर्मूला. नहीं, वो जो फॉर्मूले एज्यूम किए जाते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो फॉर्मूले उनकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल तो करें. तो जब सारी प्रॉपर्टीज देख के उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि हाँ अब उसमें ये 6 कार्बन ऐसे हैं, 12 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, फिर वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ ये एजम्पशंस लगाए गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को देख के, और अल्टीमेटली वो कंक्लूडेड फॉर्म निकलता है फॉर स्ट्रक्चर का जिससे से ज्यादा प्रॉपर्टीज हम उसमें शो कर सकें, वो स्ट्रक्चर फुलफिल कर सके उन प्रॉपर्टीज को, कि उनके रीजन को फुलफिल कर सके कि ये प्रॉपर्टी क्यों हुई, उसका ऐसा स्ट्रक्चर था, उसमें ऐसे अटैच थे, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी दिखी. ठीक है. और कभी कभी आपने सुना है कि रेजोनेंस कब आता है? रेजोनेंस की जरूरत तब पड़ती है, वो भी तो हाइपोथेटिकल है स्ट्रक्चर. रेजोनेंस की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब हम एक ही स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते हैं, तब हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लेना पड़ते हैं. उससे ही तो हमने रेजोनेंस कहा था. ठीक है. तो अभी हम ये देखिए कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन किस तरह से अरेंज है, इसके कुछ हमें एविडेंसेस चाहिए हैं. तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे, उसके हिसाब से एजम्पशंस लगाए कि हाँ इसका स्ट्रक्चर शायद ऐसा होगा. ठीक है. सो फर्स्ट व्हेन वी ट्रीट ग्लूकोज react with HI, glucose react with HI. Okay, so when C6H12O6 in presence of HI refluxed, मतलब उसे हमें प्रिलॉन्ग हीटिंग दी, बहुत देर तक बहुत बार उसे गर्म करते गए, सो अल्टीमेटली वी गेट this is N-हेक्सेन. क्या ये N-हेक्सेन है? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो 6 कार्बन है इसकी एकदम HI के साथ हमने इसको रिफ्लक्स किया, बहुत हीट किया, तो हमें N-हेक्सेन मिला. तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, मतलब उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है. क्लियर है? ये एक कंक्लूजन निकला. थर्ड, ग्लूकोज को, मतलब हमारे पास 6 कार्बन का हिसाब तो मिल गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन में शायद अरेंज थे. ठीक है. रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH और
HCN। अब उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई NH2OH से, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल 4 CH2OH। ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि सब स्टडी होने के बाद अब आपको बताया जा रहा है, इसलिए हम स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी भी ये सोच रहे हैं जब 6 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर या तो एक ऑक्सीजन हो सकता है, ये तो पता है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, तो एक ऑक्सीजन या तो एल्डिहाइड का होगा या फिर वो किसका होगा, कीटोन का होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो हम उठा के एक टेस्ट लगा लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप का। ओके, सो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी हो, कार्बोनिल ग्रुप की यदि रिएक्शन हमें मिल जाती है तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एक ऑक्सीजन तो एंगेज हो गया कहाँ, कार्बोनिल ग्रुप में। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन करने के लिए उन्होंने H2NOH, आपने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़ी है, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होती है। सो वी विल गेट NOH एंड 6 कार्बन यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये जो पार्ट मिल रहा है इससे यही एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और रिएक्शन करा के देख लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की। ओके, कार्बोनिल ग्रुप्स रिएक्ट विथ HCN, ये कार्बन की चेन है 6 कार्बन की। ओके, सो व्हेन इट रिएक्ट विथ HCN, if you remember, then this reaction we already studied in the aldehyde and ketone. Okay, so it will produce cyanohydrine. Okay, here OH and this carbon having cyanide। ये तो कार्बन की चेन आप वैसे लिखेंगे, यहाँ अभी हम एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है वो भी अभी हमें पता करना है। अभी तक तो सिर्फ इतना पता चला है कि कार्बोनिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन एंगेज हो चुकी है, तो पहली बात पता चली स्ट्रेट चेन है। सेकेंड थिंग that is it has one carbonyl group. Okay, so now we will check that carbonyl group is from aldehyde group or ketonic group. So for this we already know about that the carbonyl group if present in aldehydic compound, so it is more reactive than ketone. Aldehydes are more reactive than ketone. So if we provide mild oxidizing agent to glucose, okay, so fourth reaction is reaction with bromine water. Bromine water is mild oxidizing agent. ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि हमने इस कंपाउंड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराना चाहा और वो हो गया तो डेफिनेटली कार्बोनिल ग्रुप कौन सा था, एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड्स टोलेंट रिएजेंट से, फेलिंग सॉल्यूशन से, इन सब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनसे ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सो होल 4 CH2, ये ग्लूकोज का हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। ओके, ब्रोमीन वाटर से ये रिएक्ट करता है और ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH होल 4 CH2OH, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, तो ये प्रूफ हो गया। ये यदि कीटोनिक ग्रुप होता तो माइल्ड से तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं। तो एक बात और मिली कि वो जो एक ऑक्सीजन है या वो जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो किसका है, एल्डिहाइड का है। ओके, नेक्स्ट अभी हमें 5 ऑक्सीजन का और पता करना है। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ एक की प्लेसिंग मिली है। फिफ्थ रिएक्शन, when glucose treated with acid anhydride, okay, glucose
treated with acetic anhydride. Acetic anhydrides. ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से यदि ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आप एक और कंक्लूजन मिलेगा हमें। एसिटिक एनहाइड्राइड से यदि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लूकोज में जो बाकी के 5 ऑक्सीजन है, हो सकता है वो अल्कोहलिक हो, ठीक है। तो अल्कोहलिक होने पर हमें it will provide pentacetate. Okay, on reaction with acetic anhydride, it will produces pentacetate, CH3CO whole twice O. This is acetic anhydride. Okay, so CHO, CHO, C double bond O, CH3 whole 4, CH2O, CO, CH3. ओके, ये एसिटेट ग्रुप है। तो एसिटेट कितने मिल रहे हैं? 5, 4 + 1 5। तो ये क्या शो कर रहा है कि इसके पास 5 OH थे, मीन्स ये पेंट्रा हाइड्रोक्सी था, ठीक है। ये क्या था? पेंटा हाइड्रोक्सी था, ठीक है, क्योंकि पहले बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इसके अब 6 ऑक्सीजन का हमें हिसाब मिल गया। फर्स्ट टू इन्वॉल्व इन कार्बोनिल ग्रुप एंड 5 रिमेनिंग 5 ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वो जो 5 हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शियरी क्या है, हमें अब ये देखना है। ओके, सो फॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, sixth, all the 5 hydroxyl group, are they primary or secondary or mixture of primary and secondary hydroxyl group is present in glucose. So for this we will treat the glucose reaction with नाइट्रिक एसिड। ओके, हम इसके नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कैसे होगी? सपोज हमने दिया CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है, ग्लूकोज है। यदि हम इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ओके, सो इट विल प्रोड्यूसेस COOH CHOH होल 4 COOH, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो aldehyde group itself oxidizes to COH group and primary alcohol is also converted into COH group. नाइट्रिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल ही तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब इसमें सिर्फ ये तो इसके बदले से आया। यदि एक और हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। चलो, अभी भी आपको यदि डाउट है, 2 जगह COH है, हो सकता है आप सोच सकते हैं कि 2 प्राइमरी हो, यहाँ पर भी CH2OH हो। तो हम फिर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो ये, हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या करें, ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन करा के देख ली हमने HNO3 से। ओके, सो ऑन ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक एसिड इज also converted into saccharic acid. This is saccharic acid, SACCA, saccharic acid. ओके, ये क्या है? सैकरिक एसिड है। तो ये ग्रुप तो हम यहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था। तो अल्टीमेटली ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर हुआ विथ एविडेंस,
ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज का हम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब टर्मिनल पोजीशन पे ये होगा, बीच में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। क्लियर है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ विद द ऑल एक्सपेरिमेंट we conclude that the glucose having this structure, okay, one aldehyde group and 5 hydroxyl group arranged in this manner, okay, and one of the hydroxyl group from primary alcohol and other 4 are from the secondary alcohol. So this is the structure of glucose, okay. तो एक्चुअली देखा जाए तो ये D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं? D स्टैंड फॉर दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ पर कैपिटल डी है, ना कि डी स्मॉल है। स्मॉल डी ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता है, जिसमें अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो जो प्लस साइन होता है वो रिप्लेस कर दिया। हम 2 डी नहीं लिख सकते थे ना, तो दिस प्लस साइन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। और ये जो डी है ये आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएगा ग्लूकोज का। क्लियर है? सो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है। तो अल्फा अल्फा नहीं। सो अब ये डी और एल, एल ग्लूकोज भी होता है, डी ग्लूकोज भी होता है। तो ये डी कैपिटल और एल कैपिटल, इसका क्या मतलब है ये देखते हैं, ओके। सो ये ग्लिसरल्डिहाइड है। सो ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में हम इन मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं। क्लियर है? चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, जो भी हो, तो कहीं पर भी आपको कैपिटल डी दिख रहा है या स्मॉल कैपिटल एल दिख रहा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड देयर स्ट्रक्चर वी विल कंपेयर। सो इन दिस केस OH group is aligned this side, right side, so which and this glyceraldehyde having left side OH group. If any molecule of glucose having right side OH group present, so it is considered as D glucose. यदि इससे मिलता जुलता मिल रहा है तो उसे अपन डी ग्लूकोज कहेंगे, ओके। देखिए आप यहाँ, ये दिस इज डी ग्लिसरल्डिहाइड, ओके। ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। 5th वन, वैसे भी जब स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सेकेंड लास्ट है। तो आप यहाँ देखेंगे ये इससे रिजेंबल कर रहा है, OH इसका राइट साइड है, इसलिए वी असाइन दिस मॉलिक्यूल एज डी ग्लूकोज। If OH group present in this side, so we will write L glucose, okay, and plus sign shows the dextrorotatory nature. This is the open structure, open chain structure, okay. So some of the experiment do not perform by shown by this structure, so scientists conclude that there is some other structure also present for the glucose. So this is the स्ट्रेट लाइन और ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज को शिफ्ट रिएजेंट से भी बात करनी थी, शिफ्ट टेस्ट भी देना था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्शन देनी थी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप आपने बोला प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का है, तो डेफिनेटली उसमें भी ये रिएक्शन होना चाहिए थी, लेकिन वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। माना कि उसने हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन और HCN से भी रिएक्शन दिए, लेकिन इनसे भी देना था उसे, तो ये शो कर रहा है कि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। सेकेंड, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अब आप यहाँ देखिए, आपने पेंटाएसिटेट बनाया था, पेंटाएसिटेट में हम क्या लिख रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप शो कर रहे हैं। यदि एल्डिहाइड ग्रुप पेंटाएसिटेट में है तो इससे भी हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं की, तो क्या एक कंक्लूजन निकल सकता है, एक हिंट तो मिल सकती है, एक क्लू मिल रहा है हमें कि हो सकता है इसमें फ्री ना हो एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब कोई एक ऐसा भी स्ट्रक्चर है, यहाँ उस स्ट्रक्चर में तो आप देख रहे थे कि फ्री था एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में वो फ्री ना हो, ओके। सो फाइनल एविडेंस उनको कहाँ से मिला? जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जब ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उन्हें 2 तरह के क्रिस्टल्स मिले।
ठीक है, एक क्रिस्टल का उन्होंने देखा मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन मिला और दूसरे का मिला 423 केल्विन मिला। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अब ग्लूकोज के और भी स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं हमें। तो एक स्ट्रक्चर को उन्होंने अल्फा कहा और दूसरे को बीटा कहा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है? अभी तक तो हम डी और एल फॉर्म देख रहे थे, अब अल्फा बीटा क्या है ये देखना है। क्लियर है? सो अल्फा बीटा के लिए ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे बहुत ध्यान से देखिए। इस कार्बन में 5th कार्बन का H OH ये पोलर है और ये भी पोलर होगा, इट हैज माइनस चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसका H इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो OH बनेगा। ठीक है, ये OH में कन्वर्ट हो गया ये, और इस ऑक्सीजन के ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन कार्बन से जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया और OH और H यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो वो यहाँ से जब बॉन्ड बना सकता है तो वो यहाँ से भी बना सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर है, तो वो इस साइड से भी अटैच हो सकता है, इस साइड से भी अटैच हो सकता है। इफ और दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? ये कार्बन कौन सा कहलाएगा? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन के बेस पर भी हम इसे अल्फा और बीटा में असाइन करेंगे। इफ एनोमेरिक कार्बन हैविंग लेफ्ट साइड OH ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड बीटा। और यदि ये राइट साइड में है OH एनोमेरिक कार्बन में तो ये कहलाएगा अल्फा। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। यहां देखिए ये क्या हो गया? आपस में एनोमर्स हो गए, अल्फा और बीटा। तो C1 को अपन क्या कह रहे हैं? एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं। क्लियर है? तो अब इस तरह से हमने देखा कि उसके पास कार्बन की जो ग्लूकोज के पास जो रिंग मिल रही है कितने एटम की मिल रही है? 1 2 3 4 5 और 6। ये जो रिंग मिल रही है वो 6 एटम्स की है। 6 एटम में हमें 5 तो 1 2 3 4 5 5 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये कहलाएगा ये पायरन है। पायरन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है। जो रिंग है पायरन के जैसे मिल रही है, इसलिए हम इसे पायरेनोज भी कहेंगे। क्योंकि ग्लूकोज का है ये, तो ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज मतलब उसके टाइप को बता रहा है ये। ठीक है, तो इसके आप देख लीजिए ये C1 C2 C3 C4 C5 और C6, ये तो रिंग के इन्वॉल्व ही नहीं था। ये लास्ट वाला जो था, लास्ट वाला तो रिंग में इन्वॉल्व भी नहीं था, तो इसलिए इसे अपन ने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ बेसिक डिफरेंस, ये एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन में OH की पोजीशन चेंज होने से प्लेन के नीचे आप इसमें दिखा रहे हो पायरेनोज रिंग में, तो ये अल्फा हो जाएगा, और प्लेन के ऊपर दिखा रहे हो तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के आप दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे, एक साइक्लिक और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब सारी प्रॉपर्टीज ओपन चेन से नहीं क्लियर हो पा रही थी, ओपन चेन उनको नहीं फुलफिल कर पा रहा था उनका रीजन, इसलिए साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया। ठीक है, फिर आपके सिलेबस में फ्रक्टोज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फ्रक्टोज में ये स्ट्रक्चर है, चूंकि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कीटोनिक ग्रुप तो टर्मिनल पे नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस मिली उन्हें, और फिर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी वहां मिले। उसके अलावा उनको 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप मिले। तो जैसे ग्लूकोज के टेस्ट लगाए गए थे साइंटिस्ट ने, वही टेस्ट उस टाइप से टेस्ट लगा के फाइनलाइज किया। ओके, अब इसकी रिंग कैसे बन रही है? ये वाला जो OH है, ये OH इस कार्बन से जाके अटैच होगा, तो अब जो रिंग बन रही है 1 2 3 4 और 5, 5 बंदों की रिंग बन रही है। ऑक्सीजन और 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ये कहलाता फ्यूरन। तो दैट्स व्हाई वी कॉल फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोज ने फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये C1 तो प्राइमरी है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो C2 के बेस पर हम इसको अल्फा और बीटा असाइन करेंगे। ठीक है, C2 में यदि OH इस तरफ है, राइट साइड में है, हमेशा OH को ही देखिए आप, यहाँ H हो CH2 OH हो, वो छोड़ दीजिए, आप इसे देखिए। तो यदि राइट साइड है तो अल्फा और लेफ्ट साइड है तो बीटा। ठीक है, अब D क्यों लिख रहे हैं? D इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये राइट साइड में है OH, ये ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहे हैं इसको, तो ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस से ये D हुआ, फ्यूरॉन से के रेफरेंस से फ्यूरेनोज हुआ, और एनोमेरिक कार्बन के बेस पर चूंकि ये राइट साइड में है तो इसे हमने अल्फा कहा। तो इस तरह से अल्फा और बीटा, इसका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लीजिए इस तरह से,
उन्होंने हॉवर्थ स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है। ओके, आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, इस तरह से उन्होंने अल्फा और बीटा को बनाया। अल्फा बीटा का डिफरेंस आप फिर से देख लीजिएगा, OH और CH2H का। सो दिस इज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।